Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 5 subject mathematics. Dear students, I hope you have done your homework. Today we will learn exercise 1C questions 4, 5, 6, 10 and 11. Okay. These questions have been mentioned at pages 14 and 15. हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 को ड्रॉप किया है अभी क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, इसलिए हमने उसको ड्रॉप करके एक जैसे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हम पहले डील करेंगे. यस, multiplication. In previous class we have learned to multiply numbers up to 5 digits by numbers up to 3 digits. लास्ट क्लास के अंदर आप 5 डिजिट्स नंबर्स को 3 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं. In this lesson, we will learn to multiply numbers up to 6 digits by numbers up to 2 or 3 digits. जी, इस लेसन में हम 6 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 डिजिट नंबर्स के साथ सीखेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 and 1000. सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कोई भी 6 डिजिट नंबर जब 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो लेट्स सी what happens. तो क्या होता है when we multiply our 6 digit numbers by 10, 100 and 1000. Let's see examples. 346,512 multiplied by 10. You know, this is place value chart. Okay, if we take this figure here, yes, now we place this figure into this place value chart. Let's see. This is 6 digit numbers. We start from here. 3, 4, 6, 5, 1, 2. Yes, 346,512. Okay. Now we have to multiply this number by 10. अब हम 10 से इसे multiply करेंगे. Understand the rule. When we multiply by 10, we move that number one column to the left and fill the blank with 1 0. जी, जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि मिलियन की तरफ आ जाएंगे और इस एम्प्टी स्पेस पे हम एक ज़ीरो को पुट कर देंगे. यस, लेट्स सी. हमने लेफ़्ट की तरफ वन कॉलम मूव किया है, वन कॉलम लेफ़्ट की तरफ मूव किया है और हेयर वी हैव टू पुट ज़ीरो. Yes. Now read this figure. 3,465,120 is your answer. Okay. Now see the second example. Yes, here we multiplied 346,512 by 100. Put this figure here. Now we have to multiply this figure by 100. Yes, when we multiply by 100, we move that number 2 columns to the left and fill the blanks with 2 zeros. जी, जब हम 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 कॉलम्स लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हम इस जगह आ जाएंगे. ठीक है, लेट्स सी. यस, नाउ वी पुट 2 zeros. 1, 2. Yes, 34,651,200 is your answer. Okay. Now third example, multiplication by with 1000. Yes. Now we multiplied 346,512 by 1000. अब आप समझ गए होंगे जब 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. जी, when we multiply by 1000 we move that number 3 columns to the left and fill the blanks with 3 zeros. Yes, you can see here and put zeros. Now 346,512,000 is your answer. Okay.
Now it's your task. Now you can do question 4, 5 and 6 of exercise 1C. Question 4. Multiply the following numbers by 10, ABC. Multiply the following numbers by 100, ABC. And multiply the following numbers by 1000, ABC. There are 9 questions. You have to solve these questions in your notebook. Okay? Can you solve? Yes, good. Now comes to next topic. Multiplication of numbers up to 6 digits. Now we will multiply 6 digit numbers by a 2 digit and a 3 digit number. अब हम 6 digit numbers के साथ 2 और 3 digit numbers को multiply करेंगे. Let's see first example. Multiply 532,615 6 digit number by 23. Yes. First we copy this figure here and then put the symbol of multiplication and write 23. Okay. You know, this is called multiplicand. This is called multiplicand and this is called multiplier. Okay. Now first we multiply 3 with this number, this figure. Okay. Yes. First we multiply 532,615 by 3. सबसे पहले हम इस फिगर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5s are 15 and 3 1s are 3, 4 हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन आप तो करते आए हैं तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. आपको मेथड सिर्फ समझना है कि सबसे पहले 3 इस 6 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ओके. नाउ 1,597,845. अब हम क्या करेंगे? 20 से इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे. यस 20 से, या आप दूसरा मेथड यहाँ 0 लगा सकते हैं. 0 लगाकर आप 2 से फिर सबको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें. ओके. ये आपके लिए शायद इजी ज़्यादा हो तो आप यहाँ 0 पुट करें और 2 से फिर इन तमाम फिगर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दें. 2 5s are 10. 0 पुट करेंगे फिर आप यहाँ पर और 2 1s are 2, फिर वो 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा. यस. नाउ व्हाट विल वी डू? ऐड बोथ फिगर्स. हम दोनों फिगर्स को अब ऐड करेंगे. 5 and 0 5, 4 and 0 4, 8 and 3. एडिशन आप जानते हैं. So simply we add both figures. 5 4 8 and 3 11, 1 7 and 2 9 and 1 10. Okay. I hope you have understood this method. This is called product. Your answer is called product. Okay. When we multiply multiplicand with multiplier, we will get a product. Okay. Yes. Now we multiply 6 digit number by 3 digit number. 421,083 is the example. First we copy this number, then we copy 254. You know this is multiplicand and you know this is multiplier. Yes, first we multiply. Yes, first we multiply this figure with 4. Okay. Then we multiply this figure with 50. And you understand, आपको पता है, आप 0 यहाँ पुट कर दें और फिर 5 से आप इस पूरी फिगर को मल्टीप्लाई कर दें. अगर 50 से आप नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ 0 पुट करें. शॉर्ट मेथड है, 0 यहाँ पुट करके 5 से आप सारे नंबर्स, पहले भी आप इसी तरह करते रहे हैं, 0 यहाँ पुट करें और 5 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे आप. Yes, 5 3s are 15, okay, and 5 8s are 40. 40 and 1 41. Okay. 5 0 0 and you put 4 here. Okay. इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है. ये सिंपल है क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. Okay. Now then you have to multiply this figure with 200. 200 से मल्टीप्लाई करेंगे अब आप. Yes. फिर आप क्या करेंगे? आपने वही करना है कि 2 zeros आप यहाँ पुट करेंगे, 1 and 2.
2 जीरोस पुट करने के बाद 2 जीरो आप यहाँ पुट करें और फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 लिखेंगे, 2 8 सा 16 हो जाएगा, फिर 6 लिखेंगे, 2 0 हो जाएगा, 0 फिर 1 यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हैं डबल ज़ीरो आपने पुट कर दिया, फिर आपने स्टार्ट किया 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 0 0 हो गया आपका, 2 मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो 0 आएगा, तो 1 आप बता देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। लास्ट स्टेप क्या है, सिंपल, आप जानते हैं तीनों फिगर्स को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यस 2 0 0 2, ओके, 3 and 5 8, 3 1 4, 4 and 6 10, 0 यहाँ पुट करेंगे और 1 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा। तो ये आपने एडिशन करना है तीनों फिगर्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इट्स योर आंसर। यस, आपको दोनों एग्जाम्पल से मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी 6 डिजिट्स को जब हम 3 या 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इट्स योर होमवर्क, नाउ यू कैन डू क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 1C। अब आपने क्वेश्चन 10 देख रहे हैं, आपकी बुक में मेंशन है ये, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे चारों क्वेश्चंस को और यहाँ राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। पहले आपने वर्टिकली, हमने लास्ट लेक्चर्स में पता है हमें वर्टिकली कैसे उतारते हैं, इसको पहले यहाँ पे उतारेंगे और उसके नीचे 39 फिगर को उतारेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप आपस में। तो आई होप यू विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन इंशाल्लाह। चेक, मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर्स, स्टेप्स पूरे होने चाहिए आपके, और फिर आप आंसर्स को पीछे बुक से देख सकते हैं। Now comes to the next topic, properties of numbers. Yeah, you have already learned about this topic in previous class. Let us recall the number properties we learned in the previous classes. Okay. Yes, first one is commutative laws. What is commutative laws? Number one, commutative law of addition. This commutative law of addition states that the result remains the same even if we change the order of the numbers. Yes, commutative law of addition हमें ये बताता है कि जब भी हम ऐड करें दो नंबर्स को, तो हम उसका ऑर्डर अगर रखें 2 + 5 और फिर ऑर्डर उसका चेंज करें 5 + 2 कर दें, तो डजेंट मैटर, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप ये कहें कि 2 + 5 या 5 + 2, बोथ दोनों का आंसर सेम होगा। लेट्स सी हियर, 12 + 8 = 20, 12 + 8 भी 20 है और 8 + 12 भी 20 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 12 + 8 = 8 + 12 = 20। यस, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, पहले जिस नंबर को लिखा है उसको बाद में ले जाएं और बाद वाले नंबर को पहले लिख दें, तो इट डजंट मैटर, आंसर रिमेन्स द सेम, रिजल्ट रिमेन्स द सेम। Clear this point? Have you cleared? Okay, yes. Now comes to next, commutative law of multiplication. What it says. Commutative law of multiplication. The commutative law of multiplication states that the result remains the same even if we change the order of the numbers, like addition, sorry. एडिशन में भी यही था कि आप ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, 2 × 5 = 10 एंड 5 × 2 = 10। 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 2 से करें, आंसर रिमेन सेम, 10 ही आएगा आंसर। देख सकते हैं आप, 11 × 10 = 110। यस, 11 को आपने 10 से किया या फिर 10 को आप 11 से करें, तो आंसर क्या होगा, 110। यस, 110। इट मीन्स कि 11 × 10
or 10 multiplied by 11 gives answer 110. You can see here, आप 11 को 10 से करें या 10 को 11 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा 110. आपको समझ में आ गया? गुड. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ. Associative laws. Number one, associative law of addition. What it states? Let's see. The associative law of numbers over addition it states that when we add the numbers by grouping them differently, the result will be the same. Yes. एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन ये हमें बताता है कि जब भी हम नंबर्स की ग्रुपिंग को डिफरेंट कर दें, यानी कि अगर हम 3 नंबर्स को डील कर रहे हों तो हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो रिजल्ट सेम रहेगा. देखिए हमने क्या किया, 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 9 + 10 + 8. हमने ग्रुप बनाया यहाँ 10 + 8 का, एक ग्रुप है ये. उस ग्रुप में कौन से 2 नंबर शामिल हैं? 10 और 8. अब इनका रिजल्ट क्या है? दोनों का 18 है. 18 और 9 कितने होंगे? 27 हो जाएंगे. तो आपने 10 और 8 का पेयर लिया और इसको ऐड किया तो आपके पास 10 और 8 को 18 हो जाएगा. 18 को फिर 9 में ऐड कर लेंगे तो 27 होगा आपके पास. इसी पेयरिंग को अब आप चेंज कर लें. अब आप 10 और 8 का जो पेयर है उसको चेंज करके 9 और 10 का पेयर बना लें. ग्रुप चेंज कर दें आप, ग्रुपिंग थोड़ी सी डिफरेंट करें, 9 और 10 का ग्रुप बना लें. यस, लाइक दिस, 9 + 10, it's a different group. Okay, now you have to add 9 + 10 is 19 and 19 + 8, 27. It means the result remains same. Okay, the result will be the same. Yes, 9 + 10 + 8 का ग्रुप या फिर 9 + 10 का ग्रुप जब ऐड होगा 8 में तो रिजल्ट हमेशा 27 होगा. यानी कि ऑर्डर को आपने चेंज किया सिंपली, तो फर्क आंसर पे नहीं आ रहा आपके. ओके, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ यू सी associative law of multiplication. The associative law of numbers over multiplication states that when we add the numbers by grouping them differently, the result will be the same. Yes, here mistake, here no. Yes, here multiply. When we multiply the numbers by grouping them differently, the result will be the same. Okay, let's see. 9 multiplied by 10 multiplied by 8. It's a group 10 and 8. Okay, now second group. अब हम क्या करेंगे, 9 और 10 का ग्रुप बना लेते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा. 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, 10 और 8 को मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, 80 को 9 से मल्टीप्लाई किया आपने 270 आपका रिजल्ट है. ओके, अब 9 को 10 से आप पहले ग्रुप बना लें. यस, 9 और 10 का ग्रुप बना लें, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से. 9 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 90, और 90 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get the same result, means 270. Yes, 270. It means कि आप मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुपिंग को जब डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को बनाते हैं, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता. The result will be the same, the answer will be the same. Okay, we can see here pair of 10 and 8 and here pair of 9 and 10. Okay, but the result is the same. Okay, and here I have told you here the word is multiply. Okay, we multiply the numbers. Okay, we will discuss,
We have discussed here multiplication, not addition. Now students, your homework, what will you do? Do questions 4, 5, 6, 10 and question 11 in your copybook. Number 2, study about properties of numbers from your book at page number 13. आपने ये सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में फेयर राइटिंग में अच्छी राइटिंग में करना है और उसके अलावा आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स पढ़िए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज, दोनों लॉज को स्टडी करें, बुक की रीडिंग करें. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बेस्ट ऑफ लक. Thanks for watching this video. Jazakallah. Assalamu alaikum.